Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra। आज इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10 CBSE बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट स्किल्स में आने वाले यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड में सेशन 1 एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज इन गोल सीक में सब टॉपिक गोल सीक को कवर करेंगे। I recently uploaded a video covering the subtotal subtopic of this session. I'll provide its link in the description. Do watch that also because this session is very important and it's a very lengthy session. So if we'll watch it in parts, we'll try to understand it subtopic wise. It'll be, very convenient for us. So let's begin with this session on goal seek. Fine. So again, for the reference sake, I am referring to, the CBSE study material. The link is in the description and I'll be explaining this concept to you with the help of everything that is given in this material. You can find it on page number 66 of the book. Fine. So let us first begin with the concept of goal seek and how, it is different from the way we have been working till now. देखो बेटा, any spreadsheet package, the advantage we have, we have popular spreadsheet packages like Excel. We are studying calc in our syllabus. What we do, spreadsheet का एक purpose होता है that it is used for, calculations. We can perform simple to moderate to complex calculations by applying formulas in a spreadsheet. Formulas work on values. आपको पता है formula values पर work करते हैं. So what we do, we write some values into the cells and then we put a formula and perform some calculations on those values. So the formula must know the values upon which it is working. Fine. Now goal seek में क्या होगा? As in contrast to how goal seek would help us. Goal seek option, which is available under tools menu of OpenOffice Calc, how will it help us? It will help us discover what values will produce the result that we want. Fine. हमें अपना टारगेट वैल्यू पता होगी, हमें अपना रिजल्ट पता होगा, हम उस रिजल्ट के लिए ये फाइंड आउट करेंगे कि किन इनपुट वैल्यूज पर वो रिजल्ट हमें मिलेगा। फाइन। सो सिंगल इनपुट वैल्यू के लिए गोल सीक वर्क करता है। हम एक सिंगल इनपुट को ऑल्टर करके गोल सीक में देख सकते हैं। वी नो द रिजल्ट ऑलरेडी, वी हैव अ टारगेट इन माइंड, बट हम टारगेट से इनपुट की तरफ चलेंगे। नॉर्मली हम कैसे चलते थे? वी यूज्ड टू प्रोसीड फ्रॉम इनपुट टू द टारगेट। सो फॉर्मूला का रिजल्ट हमारे माइंड में है दैट दिस इज द रिजल्ट वी वांट फ्रॉम द फॉर्मूला। नाउ व्हिच सेल शुड आई ऑल्टर in order to get that result? This is how goal seek is going to help us. So it is going to be very interesting. Let's proceed and try and understand it first theoretically and then practically. Fine. एक चीज आप याद रखना that only one argument can be altered in a goal seek. एक वेरिएबल वैल्यू पर आप वर्क करोगे गोल सीक के। सिंगल गोल सीक में आप एक वेरिएबल फॉर्मूला में यूज होने वाली किसी एक वैल्यू वेरिएबल की तरह लेके चलोगे। कैसे करते हैं अभी आपको क्लियर होगा एज आई शो इट टू यू प्रैक्टिकली। पहले एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है एंड दैट सेज दैट सपोज आई वांट टू कैलकुलेट एनुअल इंटरेस्ट डिनोटेड बाय कैपिटल आई। I'll create my spreadsheet and I'll write down the values for capital, that is denoted by C, capital C, number of years denoted by small n, and interest rate denoted by small r. To find out my annual interest, the formula that I'm going to use is I is equal to C into n into r. ठीक है, कैपिटल इंटू नंबर ऑफ इयर्स इंटू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि हम अब ये तीन वेरिएबल्स हमारे इस फॉर्मूला में यूज हो रहे हैं। हम किसी एक को वेरिएट करके देख सकते हैं। फाइन। सो हम दो को फिक्स करेंगे। दो को हमने कैसे फिक्स किया? हमने कहा हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.5 पे फिक्स्ड है और नंबर ऑफ इयर्स 1 ये भी फिक्स्ड है। सो हमने दो वेरिएबल्स को फिक्स कर दिया। नंबर ऑफ इयर्स को 1 मान लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.5 फिक्स कर दिया। आप कोई भी दो वेरिएबल्स ले सकते थे। इस एग्जांपल में हमने n और r को कांस्टेंट लिया, यानी हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपिटल के लिए इस गोल सीक को चला सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए अगर ये टारगेट है तो कैपिटल कितना होना चाहिए? दिस इज माय टारगेट, व्हाट शुड बी द कैपिटल? सो हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गोल सीक। टारगेट हमें पता होगा। ठीक है। However, I want to know how much capital, investment capital C would have to be modified in order to attain a particular return I. That means मुझे अपना annual interest rate पता है,
मुझे दो चीज़ें ये भी पता है कि एन और आर की वैल्यू क्या है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कितने कैपिटल के लिए एन और आर फिक्स रखते हुए मुझे ये पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा आई का। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि हाउ मच कैपिटल सी वुड बी रिक्वायर्ड इफ आई वॉन्ट एन एनुअल रिटर्न ऑफ $15,000। यानी मुझे अपने टारगेट वैल्यू पता है, फॉर्मूला का रिजल्ट पता है $15,000, मुझे रेट की वैल्यू भी पता है 7.5%, मुझे ईयर्स भी पता है, नंबर ऑफ ईयर्स 1 है। मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे सी कितना चाहिए इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। यहाँ हम अपने गोल को सीख करेंगे। फाइन, सो हम एक पहले अपने फॉर्मूला को चेक कर लेंगे। सी की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू, जैसे इस एग्जाम्पल में 1 लाख डाला है और N1 और रेट फिक्स करते हुए 7.5% पर हम फॉर्मूला लगाकर जो हमने सेल्स में सपोज जो चूज किए हैं अपनी स्प्रेडशीट में, वो B1, B2, B3 लिए हैं। ठीक है, B1 में मैंने फीड किया कैपिटल, B2 में नंबर ऑफ ईयर्स एंड B3 में इंटरेस्ट रेट। फाइन, अब मुझे एनुअल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है B4 में। सो B4 में मैं फॉर्मूला लगा के कैसे आगे प्रोसीड करती हूँ वो अब हम सीखेंगे। ठीक है, सो मैं आपको जल्दी से अपनी शीट दिखा देती हूँ। दिस इज माय शीट। कैपिटल मैंने B1 में इंसर्ट किया है, नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स्ड हैं 1 में इंसर्ट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, ये भी B3 में इंसर्ट किया है। B1, B2, B3 में जो वैल्यूज हैं, B4 में आई हैव पुट द फॉर्मूला इक्वल टू B1 इंटू B2 इंटू B3। फाइन, और आर्बिट्रली मैंने अभी कैपिटल की वैल्यू 1 लाख ले रखी है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस कर्सर में हमारा फॉर्मूला है उसको सिलेक्ट कर लेना, मतलब उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है या उसमें कर्सर प्लेस कर दो और फिर आप टूल्स गोल सीक में जाओगे। ठीक है, तो करते हैं जल्दी से। हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, या तो कर्सर रख लीजिए, सेल सिलेक्ट कर लीजिए, गो टू टूल्स एंड चूज द ऑप्शन गोल सीक। ये आपको डायलॉग बॉक्स मिल गया और इसमें आप देखोगे जो फॉर्मूला सेल, 3 सेटिंग्स है बेटा इसमें, फॉर्मूला सेल, टारगेट वैल्यू, वेरिएबल सेल। फॉर्मूला सेल, क्योंकि आपने फॉर्मूला सेल को सिलेक्ट करने के बाद टूल्स में से गोल सीक चूज किया था, फॉर्मूला सेल का रेफरेंस यहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है। B4 आपको यहाँ ऑलरेडी एंटर्ड मिल रहा है। ठीक है, अब बाकी दो का पर्पस समझते हैं। वेरिएबल सेल में हम क्या करेंगे, देखो ऑन द गोल सीक डायलॉग बॉक्स द करेक्ट सेल इज ऑलरेडी एंटर्ड इन द फॉर्मूला सेल फील्ड, ये हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्लेस द कर्सर इन द वेरिएबल सेल फील्ड। वेरिएबल सेल फील्ड में कर्सर प्लेस करो डायलॉग बॉक्स के और शीट पर उस सेल को क्लिक कर दो जिसे आप बदलना चाहते हो। दैट कंटेन्स द वैल्यू टू बी चेंज। दो वैल्यूज फिक्स थी एन और आर, हम कैपिटल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं ना अलग अलग टारगेट्स के लिए, सो हम B1 पर क्लिक कर देंगे। ठीक, सो चलते हैं, वेरिएबल सेल पे क्लिक किया और B1 सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखो B1 का रेफरेंस भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो हमारे दो वैल्यूज फिल हो गई, पहला फॉर्मूला और फिर वेरिएबल सेल। यानी अब इसमें वैल्यू चेंज, इसमें वैल्यू आएगी जब गोल सीक चल जाएगा तो हमें यहाँ पता चलेगा कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, किसके लिए, हमारी पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू के लिए। सो अभी हमने टारगेट वैल्यू मेंशन नहीं करी है। लेट्स सी, enter the desired result of the formula, that is my target value in the target value field. In this example it is 15,000. so मुझे कितना एनुअल इंटरेस्ट चाहिए, आई वॉन्ट 15,000। सो मैं यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे तीनों सेल्स फिल हो गए। किसने टारगेट वैल्यू के लिए गिवन फॉर्मूला में B1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर मेरा टारगेट एनुअल रेट का, एनुअल इंटरेस्ट का 15,000 है। अब हम क्या करेंगे, इतना फिल करने के बाद ओके क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा विच विल टेल दैट गोल सीक वाज सक्सेसफुल। हमें येस पे क्लिक करना है उस डायलॉग बॉक्स में, और येस किस लिए पूछेगा वो हमसे येस करने, वो हमें गोल सीक से जो कैपिटल की वैल्यू है वो फाइंड आउट करके देगा और ये पूछेगा डू यू वांट टू इंसर्ट दिस वैल्यू इनटू द B1 सेल, यानी कि जिस सेल, वेरिएबल सेल का जो रेफरेंस था वहां पर आपको वो वैल्यू डालनी है। अगर हम येस पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू हमारी 2 लाख यानी 15,000 रेट एनुअल इंटरेस्ट के लिए मुझे कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, 2 लाख, जब मेरा नंबर ऑफ ईयर्स फिक्स्ड है 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है 7.5%। फाइन, तो चलते हैं, बस अब हमारा ओके करने का काम रह गया। हम ओके करते हैं,
goal seek successful dialog box is there. Insert goal seek successful, insert result 2 lakhs into the current cell, which is my current cell. देखो highlighted कौन सा cell आ रहा है इस समय, capital वाला, क्योंकि इसी के लिए हमने ये goal seek चलाया है. So I'll click on yes. See, it reads 2 lakhs. So ये मेरा यहाँ पर आ गया, मुझे पता चल गया कि इतने एनुअल इंटरेस्ट के लिए इतनी कैपिटल मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी जब मेरे फॉर्मूला में यूज होने वाले द अदर टू पैरामीटर्स नंबर ऑफ ईयर्स एंड आर फिक्स्ड एज 1 and 7.5% रिस्पेक्टिवली. सो हाउ सिंपल इट इज. आप इस गोल सीक को अलग अलग वैल्यूज के लिए चला के देख सकते हो, अलग अलग टारगेट वैल्यूज के लिए. आप कैपिटल और रेट को फिक्स करके नंबर ऑफ ईयर्स को चेंज कर सकते हो. गिवन टारगेट के लिए आप नंबर ऑफ ईयर्स और कैपिटल को फिक्स करके रेट को वेरिएट कर सकते हो गिवन टारगेट के लिए. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स. सो इट वाज सो सिंपल दिस गोल सीक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. आप इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखना, सब टोटल्स भी ट्राई करना, एंड डू कम बैक टू मी विद योर comments and your valuable feedback, because that is my source of motivation. So till we meet again, children, happy learning and God bless you. Thank you so much.